Okay, today we are going to start a very important topic of the English grammar, that are prepositions. So before starting up with the topic, you should know what are prepositions. Prepositions होते क्या हैं? Preposition is a word that shows us the relation between one word with the other word in the sentence. For example, in, at, on, behind, etc. They are prepositions. जो वर्ड हमें नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताते हैं अदर वर्ड्स के साथ सेंटेंस में, उन्हें हम क्या कहते हैं? prepositions. What we call them? We call them prepositions. For example, they are not in the classroom. So they is what? They is a pronoun and in is what? In is the preposition and classroom is the noun. So pronoun और noun का relation बाकी words के साथ कौन सा word हमें बता रहा है? In बता रहा है. So in is the preposition here. He is standing near the gate. He is a pronoun. Gate is a noun. और बाकी words के साथ he और gate का हमें relation कौन सा word बता रहा है? Near बता रहा है. So prepositions are the words that shows us the relation between one word with the other words in the sentence. So today we'll start up with the prepositions of place. Today we'll start up with the prepositions of place. तो prepositions of place वो words होते हैं. Today we'll start with prepositions of place. Prepositions of place वो words होते हैं, वो prepositions होते हैं जो हमें place के बारे में बताते हैं कि कहाँ पर noun और pronoun का action हो रहा है. Where it is taking place. Where we will focus on where, कहाँ. So in this prepositions of place we have various prepositions like through, in, on, at, among, between, behind, below, under, beside, and lot more are there, and we will have the descriptions one by one. Okay, first we'll start up with through. पहले हम through से start करेंगे. Through वो preposition है जो हमें बताता है कि easily कहाँ पर आपकी movement हो रही है, कहाँ से आप गुजर के जा रहे हैं. ठीक है, तो we walked through the woods. We walked through the woods. हम कहाँ से गुजर के जा रहे हैं? हम woods से निकल के जा रहे हैं. Okay, we walked through the, we crossed the desert. We crossed through the desert. हम desert को cross करते हुए जा रहे हैं. ठीक है, we walked through the through मतलब through वो preposition है जो हमें बताता है कि हम किसके through निकल के जा रहे हैं. इन हमारे prepositions हैं. जहाँ इन preposition हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है, या हमें कोई बिगर एरिया को शो करना है, जैसे स्टेट है या कंट्री है, तो उसके लिए हम कौन सा preposition यूज करेंगे? इन preposition. The fruit is in the refrigerator. फ्रूट किसके अंदर है? रेफ्रिजरेटर के अंदर. कुतुब मीनार इज इन दिल्ली. दिल्ली क्या है? दिल्ली एक स्टेट है, तो दिल्ली के आगे हम कौन सा preposition लगाएंगे? इन. I know a person in India. I know a person in India. इंडिया क्या है? इंडिया इज अगेन अ कंट्री. मैंने बोला स्टेट और कंट्री के आगे हम कौन सा preposition हमेशा यूज करेंगे? इन preposition यूज करेंगे. ठीक है. on preposition हम यूज करते हैं जब कोई चीज किसी सरफेस के ऊपर रखी हुई है लेकिन वो मूव नहीं कर रही, वो एक जगह रखी हुई है किसी चीज के ऊपर. जैसे द बुक इज ऑन द टेबल. बुक टेबल के ऊपर रखी गई है, टेबल के सरफेस के ऊपर रखी गई है लेकिन वो मूव नहीं कर रही, तो वहां पर हम कौन सा preposition यूज करेंगे? on preposition. The lamp is on the table. Humpty Dumpty sat on the wall. The lamp is on the table. टेबल के ऊपर लैम्प रखा है लेकिन लैम्प मूव नहीं कर रहा है. Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty वॉल के ऊपर बैठे हुए हैं लेकिन वो मूव नहीं कर रहे हैं. At preposition हम यूज करते हैं वहां पर जहां पर हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ प्लेस शो करना है. ठीक है, जहां पर एक हमें पॉइंट ऑफ प्लेस शो करना है वहां पर हम कौन सा preposition यूज करेंगे? at preposition. I am waiting at the bus stop. तो बस स्टॉप एक पॉइंट है. ठीक है, बहुत बड़ा एरिया नहीं है जहां पर बहुत बड़ा छोटा एरिया हमें शो करना होता है, वहां पर भी हम कौन सा preposition यूज करते हैं? at preposition. I am waiting at the bus stop. He works at bank. वो कहाँ पर वर्क कर रहा है? बैंक में कर रहा है, स्कूल में. हर कॉलेज इज एट दी करोल बाग. करोल बाग में बहुत बड़ा एरिया नहीं है, छोटा सा है. तो जो छोटे से एरियाज और एक स्पेसिफिक पॉइंट हम यूज शो करने के लिए हम कौन सा preposition यूज करते हैं? at preposition. at the beach, at the bank, at the school. ओके, at करोल बाग, at रामपुर. ठीक है, और स्टेट और कंट्री के लिए हम कौन सा preposition यूज करेंगे? इन preposition यूज करेंगे. Now we'll come to among.
among हम कहाँ पर यूज करते हैं? among हम यूज करते हैं उन जहाँ पर हमें दो से ज्यादा चीजों के बारे में या किसी पर्सन या थिंग के बारे में बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग दी बॉयज, ओके। तो डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग दी बॉयज, बॉयज दो से ज्यादा है लेकिन हमें नहीं पता कितने, लेकिन दो से ज्यादा है। तो यहाँ पर हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे? अमंग। ही गोज टू चर्च एंड सिट अमंग दी बॉयज, तो चर्च जाता है और बॉयज के बीच में जाके बैठ जाता है, लेकिन कितने बॉयज है हमें नहीं पता। टू से ज्यादा है तो हम हमेशा अमंग यूज करेंगे। लेकिन जब हमें टू के बारे में बात करनी होगी तो हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे? बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, दो जनों के बीच में। द कॉम्पिटिशन इज बिटवीन यू एंड मी, द कॉम्पिटिशन इज बिटवीन यू एंड मी। यहाँ पर हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करा? बिटवीन, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में कॉम्पिटिशन, दो लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन है। रितु इज सिटिंग बिटवीन हर एंड हर ब्रदर एंड सिस्टर। रितु किसके बीच में बैठी है? ब्रदर और सिस्टर के बीच में बैठी है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रपोजिशन इज बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। पुलिसमैन इज रनिंग बिहाइंड द थीफ, पुलिसमैन थीफ के पीछे भाग रहा है। राम इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, राम मेरे पीछे खड़ा है। तो आई होप इन, एट, ऑन, अमंग, बिटवीन इज क्लियर टू यू? यस। तो नाउ विल स्विच टू बिलो। बिलो प्रेपोजिशन हम कहाँ यूज करते हैं? बिलो प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं वहां के लिए जहां पर हमें किसी सरफेस के नीचे, जहां पर हमें कोई प्लेस शो करना होता है किसी चीज के नीचे का, ठीक है। द पिक्चर इज बिलो द ट्यूबलाइट, द पिक्चर किसके नीचे है? ट्यूबलाइट के नीचे है, उसके नीचे है बिलो। किसी प्लेस का, किसी प्लेस के नीचे का जो हमें प्लेस शो करना होता है उसके लिए हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं? बिलो प्रपोजिशन। द प्लेस लोअर देन समथिंग एल्स, किसी चीज से नीचे का हिस्सा शो करना होता है। द टेम्परेचर इज बिलो एवरेज टुडे। अब डेली टेम्परेचर अगर एवरेज है लेकिन आज एवरेज से भी नीचे है तो हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे? बिलो प्रपोजिशन। ये टेम्परेचर के लिए भी यूज हो सकता है और ये किसी प्लेस को, किसी चीज को किसी चीज के नीचे दिखाने के लिए भी यूज हो सकता है। अंडर, अंडर हम वहां यूज करते हैं जहां पर कोई चीज किसी चीज के नीचे वर्टिकली है, एकदम उसके नीचे है, ठीक है। द मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री, ट्री के बिल्कुल नीचे आदमी बैठा हुआ है। द चाइल्ड इज स्टडिंग अंडर द लैम्प, द चाइल्ड बिल्कुल लैम्प के नीचे पढ़ रहा है, ठीक है। तो वहां पर हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे? अंडर प्रपोजिशन। अंडर प्रपोजिशन वर्टिकली नीचे, बिल्कुल नीचे के लिए यूज होता है। बिसाइड, बिसाइड हम कहाँ यूज करते हैं? ही ले बिसाइड द चार्मिंग गर्ल, ही ले बिसाइड द चार्मिंग गर्ल। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, नेक्स्ट टू, बगल में। ही ले बिसाइड द चार्मिंग गर्ल, वो चार्मिंग गर्ल के बगल में बैठा है। द रैक इज बिसाइड द अलमीरा, रैक अलमीरा के बगल में है। तो आई होप बिसाइड, अंडर, बिलो इज क्लियर टू यू। व्हाट इज बिलो, अंडर, बिसाइड हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। यस और नो? सो नेक्स्ट विल स्टडी ओवर। सो ओवर कहां पर हम यूज करते हैं? ओवर हम यूज करते हैं जब कोई चीज वर्टिकली हमारे हेड के ऊपर होती है, बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होती है, यहाँ पे इस सीधाई में होती है, इस सीध में होती है ऊपर, वर्टिकली हमारे हेड के ऊपर। विंड चाइन इज ओवर योर हेड, मेरे बिल्कुल हेड के ऊपर विंड चाइन है ऊपर। अगर मैं फैन के नीचे खड़ी हूं तो बिल्कुल मेरे फैन बिल्कुल मेरे सर के ऊपर है, तो मैं ये बोलूंगी द फैन इज ओवर माई हेड, ओके। द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग, द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग। द बर्ड कहां पर है? बिल्कुल बिल्डिंग के ऊपर उड़ रहा है, ओके। अबव, अबव और ओवर में डिफरेंस है कि ओवर बिल्कुल हमारे सर के ऊपर जब कोई चीज आएगी तो हम ओवर यूज करेंगे, लेकिन जब हमारे बिल्कुल सर के ऊपर नहीं है लेकिन वो कहीं पर भी ऊपर है तो हम अबव यूज करेंगे। एरोप्लेन फ्लू अबव द क्लाउड्स, एरोप्लेन कहाँ फ्लाई कर रहा है? क्लाउड्स के ऊपर। शी लिव्स इन अ फ्लैट अबव, वो कहाँ रहती है? ऊपर कहीं पर भी रहती है, फ्लैट में रहती है, ठीक है। शी लिव्स इन दी फ्लैट अबव। नियर, नियर का मतलब होता है पास, तो नियर हम किस लिए यूज करते हैं? पास के लिए यूज करते हैं। तो द मार्केट इज नियर टू माई हाउस, मार्केट मेरे घर के पास है। देयर इज अ बिग टेम्पल नियर माई हाउस, टेम्पल का है मेरे घर के पास है। बाय, बाय हम वहां यूज करते हैं जहां पर हमको एक प्लेस आइडेंटिफाई करना होता है, एक प्लेस बताना होता है, ठीक है। ही लिव्स बाय माई हाउस, वो मेरे घर के पास में ही मेरे घर के साथ में ही रहती है, मेरे घर के वहीं रहती है।
बाय माई हाउस। रीमा मेट मी बाय द पार्क। रीमा मुझे पार्क के आसपास मिली। मतलब एक प्लेस को आइडेंटिफाई करने के लिए बाय यूज होता है। टू आइडेंटिफाई इज दी प्लेस, कि वो कहाँ रहती है, मेरे घर के पास ही रहती है, मेरे घर के वहीं रहती है। ठीक है, रीमा मेट मी बाय द पार्क, मुझे घर के मेरे पार्क के वहीं मिली रीमा मुझे। ठीक है, तो एक प्लेस है जैसे हाउस है या पार्क है, ये एक प्लेस को आइडेंटिफाई कर रहा है कि हाँ यहाँ पर इसी के यहीं पर कुछ हुआ है ना। नेक्स्ट इज डाउन। डाउन प्रेपोजिशन। डाउन प्रेपोजिशन कहाँ यूज होता है? आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। नो। अब डाउन प्रेपोजिशन हम कहाँ यूज करते हैं? डाउन प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं वहां पर जहां बाय क्लियर हो गया सबको। डाउन प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं वेयर वी वांट टू शो अ हायर प्लेस टू द लोअर प्लेस। ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं, ठीक है। डाउन, आई बेंट डाउन टू पिक अप द पेन। मैं नीचे झुक गई क्योंकि मुझे पेन उठाना था। I went down to pick up the pen. तो डाउन प्रेपोजिशन यूज होता है जब हमें हायर प्लेस से लोअर प्लेस की तरफ जाते हैं। ओके, हायर से लोअर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। डाउन, आई बेंट डाउन टू पिक अप दी पेन। अक्रॉस होता है एक साइड से दूसरे साइड की तरफ जाना, एक साइड से ऑपोजिट साइड की तरफ जाना। द ब्रिज इज अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रिवर। अब एक रिवर है, रिवर के ऊपर ब्रिज जा रहा है, तो वो एक साइड से स्टार्ट करेगा और दूसरी साइड पे खत्म होगा, रिवर को पूरा कवर करेगा ऊपर से। तो लाइकवाइज द ब्रिज इज अक्रॉस द रिवर। तो ब्रिज रिवर के ऊपर है, ठीक है। द स्ट्रीट इज अक्रॉस द रोड। द ब्रिज इज अक्रॉस द रिवर। ब्रिज रिवर के अक्रॉस। ओके, एंड नाउ द प्रीपोजिशन फ्रॉम एंड टू। From marks the beginning of the action and to marks the ending of the action. From क्या होता है? जहां से एक्शन बिगिन कर रहा है, स्टार्ट हो रहा है, और to है जहां पे एक्शन खत्म हो रहा है। The museum opened from 8 AM to 4 PM. कब से स्टार्ट हो रहा है? 8 AM से। कब खत्म हो रहा है? 4 PM पे। ठीक है, तो from हम वहां यूज करते हैं जहां पे एक्शन स्टार्ट हो रहा है, और to वहां यूज करते हैं जहां पे एक्शन खत्म हो रहा है। ओके, The competition will start from 9 AM to 12. कब स्टार्ट हो रहा है? 9 AM और खत्म कब हो रहा है? 12 PM. Okay, to marks the ending and from marks the beginning. जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से from लगाएंगे, और जहां पे खत्म होगा वहां पे to preposition यूज। समझ में आया? Towards होता है कि हम किसी डायरेक्शन की तरफ जब इंडिकेशन देते हैं, किसी दिशा की तरफ जाते हैं। The bus moved towards the town. बस कहाँ मूव कर रही है? टाउन की तरफ मूव कर रही है, की तरफ। ठीक है, बस कहाँ मूव कर रही है? टाउन की तरफ मूव कर रही है। ही इज लुकिंग एट मी, वो मेरी तरफ देख रहा है। ही इज लुकिंग एट मी। ओके, वो मेरी तरफ देख रहा है, तो वो मेरी डायरेक्शन में देख रहा है ना। तो टूवर्ड्स हम वहां यूज करेंगे जहां पर कोई डायरेक्शन शो करनी है। इनटू हम वहां यूज करते हैं जहां पे कोई चीज किसी चीज के अंदर जा रही है, ठीक है, लेकिन वो जब भी मूव कर रही है। इनमें क्या था? कोई चीज किसी चीज के अंदर है लेकिन वो मूव नहीं कर रही, लेकिन इनटू में वो मूव करेगी। ही जंप इनटू द रिवर, उसने रिवर के अंदर जंप करा, लेकिन रिवर के अंदर जाने के बाद भी वो स्विम तो कर रहा है ना, वो मूवमेंट तो कर रहा है। इसलिए वहां पर हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे? इनटू प्रपोजिशन। ठीक है, ही वॉक इनटू द क्लास, वो क्लास के अंदर वॉक करती हुई आई। क्लास के अंदर आई तो वॉक तो कर रही है ना, मूव तो कर रही है, तो वहां पर हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे? इनटू प्रपोजिशन। अब एक चीज और, मैंने ऑन प्रपोजिशंस आपको बताए थे। ऑन प्रपोजिशंस में क्या था कि कोई चीज किसी चीज के सरफेस के ऊपर रखी हुई है लेकिन वो मूव नहीं कर रही है ना, यही बोला था ना मैंने। तो अगर ऑन के ऊपर कोई चीज रखी हुई है लेकिन वो मूव नहीं कर रही तो हम ऑन यूज करेंगे। लेकिन अगर वो किसी सरफेस के ऊपर आ रही है कोई चीज लेकिन वो मूव कर रही है तो हम क्या यूज करेंगे? ऑन टू। मूवमेंट शो करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑन टू। ऑन टू, ठीक है। तो ऑन टू यूज होता है मूवमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से
द कैट इज ऑन टू दी कैट जम्प ऑन टू दी चेयर। तो कैट जंप करके चेयर के ऊपर आई है ना, मूव करते हुए चेयर के ऊपर आई है ना अपने आप से। सो इन द केस ऑफ मूवमेंट वी यूज ऑन टू इंस्टेड ऑफ ऑन। समझ में आया? थैंक यू क्लास। इन द नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट विद प्रपोजिशन ऑफ